वेलकम टू द्रोणास ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है ना, हम लोगों ने मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के ऊपर एक सीरीज चालू किया है। तो आज उसका चौथा क्लास है, चौथा नंबर, 4th नंबर क्लास है आज उसका। तो ये जो हिस्ट्री है ये मैंने स्टार्ट किया है ये क्लास 412 से, ठीक है, 1712 से। दैट मीन्स फ्रॉम द इन्वेंशन ऑफ मीर कासिम, and after that we come at Mahmud Ghazni. Then after we come Mahmud Ghor, and after that Kutubuddin Aibak. And today we're discussing about the Iltutmish and his successor. Okay, so I write here the title I give. The title is the first phase of Delhi Sultanate. Okay, so notice the Delhi is the Delhi Sultanate. So why I call this the title? Why I write the title as the Delhi Sultanate? Because the first phase of Delhi Sultanate, because during that period between the 1206 to 1266, all sultans are belongs to the Iltutmish. That means all are the successor or the family member of the Iltutmish. The all are the directly or indirectly related to the tribe, related to the group of Iltutmish or a family of Iltutmish. For that reasons, I gave the name of the title as its first phase of Delhi Sultanates. And between the 1206 to the 1266, the first ruler is the Iltutmish, and after Iltutmish, it is the Rukunuddin Firoz Shah. Rukunuddin Firoz Shah. After Rukunuddin Firoz Shah came Razia Sultana. After Razia Sultana, it is a Bahram Shah. Bahram Shah. After Bahram Shah, Alauddin Masud Shah. And at last, the last ruler of the Iltutmish family or the Iltutmish religion or tribe groups, that is the Nasiruddin Muhammad. So all are they known as the whole dynasty from the Iltutmish to the Nasiruddin Muhammad, also known as the Ilbari dynasty. Why this time period, the 1206 to the 1266, identified or the recognized as the Ilbari dynasty? Because Iltutmish belongs to a Ilbari tribe group. Ilbari tribe group. For that reason, his reign or his successor's reign is known as the Ilbari dynasty. And Balban, after the Nasruddin Shah Muhammad, Balban is not belongs to the Ilbari dynasty or Ilbari Turks. For that reasons, I separate the Balban from the first phase of the Delhi Sultanate, and the time period of the Balban started from the 1286 or 86 or the 88. Okay. Sorry. Balban period start from the 1266 to the 1288. So for that reasons, I gave the name of the title as the first phase of Delhi Sultanate, because during the period, all sultans belongs to the tribe groups named the Ilbari, and their dynasty is known as the Ilbari dynasty, and all they belong to the Iltutmish or the successor of Iltutmish. So
in our last class we have already discussed about some previous problems that are faced by the Iltutmish. Discussing the problems those are faced by the Iltutmish in his previous years. Okay, when the Iltutmish ascended to the thrones, he had three competitors, three powerful competitors. Who are they? The first one is the Yalduj. First of all, the Yalduj. So Yalduj assumed the power of Ghazni. Okay. Next is the Nasiruddin Kubacha. Nasiruddin Kubacha. So where are from the Nasiruddin Kubacha? Nasiruddin Kubacha acquired the power of Punjab and Multan. And he had also one competitor named as the Ali Mardan. And Ali Mardan belong to Bengal. So these are the competitor of the Iltutmish. So as we know, the Iltutmish बहुत अच्छे से ही इन लोगों को क्या किया, इन लोगों को हराया, यालदुज को हराया। यालदुज को कौन से बैटल में हराया था? बैटल ऑफ थाटतराइन। बैटल ऑफ थाटतराइन in the 1215 को हराया। उसके बाद उसने नसीरुद्दीन कुवाचा को भी पंजाब और जो मुल्तान है वहां से हटाया, और अलीमर्दीन को भी उसने हरा दिया था, और अलीमर्दीन का जो पावर है उसको कंट्रोल किया था। एक्चुअली अलीमर्दीन का पावर उसने डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया था। अलीमर्दीन को एक दूसरे आदमी ने, दूसरे मुस्लिम रूलर और दूसरे मुस्लिम लीडर ने हटाया था, फिर इल्तुतमिश ने उसको सप्रेस किया था। सो 1225 से इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने पहले ये जो उसके बाहर के जो जितने सारे दुश्मन थे इन लोग को सबको हरा दिया था। ठीक है, उसके बाद उसके साम्राज्य के अंदर, उसके एम्पायर के अंदर जितने प्रॉब्लम थे उसको ठीक करने के लिए उसने मिशन चालू किया। तो सबसे फर्स्ट उसने क्या किया था? 1225 को उसने अपनी आर्मी किसके अगेंस्ट भेजा था? को ईस्ट में भेजा था। तो ईस्ट मीन्स यहाँ पर कौन सी जगह को बताता है? ईस्ट मीन्स यहाँ बिहार और बंगाल है। हाँ, ईस्ट मीन्स यहाँ बिहार और बंगाल है, क्योंकि दोनों ही जगह में जो एडमिनिस्ट्रेशंस थे वो इल्तुतमिश के हाथ से निकल गए थे और इल्तुतमिश के हाथ में नहीं थे। तो उन्होंने ये जो यल्दुज, नासिरुद्दीन कुबाचा, मंगोल इन्वेशन, ये सब कुछ सबसे जब उन्होंने निपट लिया तब उन्होंने सोचा जी नहीं, अभी बाहर से मेरा एम्पायर पूरा सा सुरक्षित है, तो अभी मेरे साम्राज्य के अंदर जो प्रॉब्लम हो रहे हैं उनको मुझे ठीक करना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने इसलिए 1225 को इन्होंने अपने आर्मी भेजा। किस तरफ भेजा? पूर्वी भारत की तरफ भेजा। पूर्वी भारत मीन्स उन्होंने पार्टिकुलरली बंगाल और बिहार के लिए भेजा था। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये 1226 से 1227 ने इल्तुतमिश ने अपने बेटे के अंडर में, और उसका बेटे का नाम क्या था? देखो, नासिरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद, वो जो मैंने क्रोनोलॉजी में लिखा था ना नासिरुद्दीन मोहम्मद, वो लेकिन अलग नासिरुद्दीन मोहम्मद है। ये है इल्तुतमिश का बेटा, सन ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, and that Nasiruddin Muhammad is a grandson of the Iltutmish. So here is a difference between this Nasiruddin and that Nasiruddin. And he had a very capable ruler, very capable soldier. Nasiruddin Muhammad is a very capable soldier, and he easily defeated the new ruler of Bengal. Why? No, what is the name of the new ruler of the Bengal? This is the Aiwaz Khan. तो आइवज खान के पहले जो बंगाल के रूलर थे वो थे अली मर्दान। तो आइवज खान ने क्या किया? आइवज खान ने अली मर्दान को क्या किया था? हरा दिया था। हरा के देखो उसने एक टाइटल लिया था। ही एज्यूम्ड अ टाइटल। सो व्हाट इज द नेम ऑफ टाइटल? दैट इज द गियासउद्दीन। ठीक है, उसने गियासउद्दीन टाइटल लिया। लेके पहले उसने अलीमर्दन को हराया। ठीक है, जो युद्ध में हराया। हराने के बाद उसने गियासउद्दीन टाइटल लिया। और आयज को अब क्या हुआ? अब जब
इल्तुतमिश ने देखा जिन्हें बंगाल का जो शासन है, जो शासन के तरीके हैं वो बदल रहे हैं, अली मर्दन के से पावर आइवाज खान ने लिया और उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर की तरह ट्रीट किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषणा कर चुका है, सुल्तान का उसने टाइटल भी ले लिया है गियासुद्दीन। तब उसकी आंख खुली और उन्होंने अपने बेटे को भेजा। कौन सी ईयर में भेजा, देखो पहले लिख दिया 1226 टू द 1227, ठीक है, अपने बेटे को भेजा। और इल्तुतमिश के जो बेटा था नसरुद्दीन मोहम्मद, खूब इजीली उसने अय्याज खान को हरा दिया और बंगाल बिहार को दिल्ली सल्तनत में ले आया। लेकिन ये जो बंगाल है, बिहार तो आ चुका था, बंगाल अभी थोड़ा पार्ट ही आया था। बंगाल पूरी तरीका जो दिल्ली सल्तनत के अंदर आया था वो आया था 1230 से 1231 के बीच आया, ठीक है। कब आया, 1230 से 1231 के बीच में आया, ठीक है ना। इसके बाद उन्होंने क्या किया आप लोगों को पता ही है। इसके बाद जो राजपूताना एरिया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट ना वेस्टर्न एरिया में, वी नो इन द वेस्टर्न इंडिया देयर इज अ राजपूताना, ओके, एंड द किंग ऑफ द राजपूताना आर वेरी पावरफुल। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट राजपूताना किंग्स आर द रसिसा रणथंबर, ओके, ग्वालियर, मेवाड़, ओके। सो द किंग ऑफ द रणथंबर, सो उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1226 को उन्होंने एक कैंपेन भेजा, एक एक्सपीडिशन उन्होंने लॉन्च किया, किसके अगेंस्ट में, रणथंबर के अगेंस्ट में, और इजीली रणथंबर को उन्होंने जीत लिया। और बिटवीन द 1226 टू द 1232 इल्तुतमिश हैड एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी ओवर द मांडर में लिया अपना अथॉरिटी, मांडर को अपने अंडर में लिया, जालोर को लिया, बयाना को लिया और ग्वालियर को लिया। तो उन्होंने ग्वालियर जीतने के बाद देखो उन्होंने क्या किया, उज्जैन को भी जीत लिया। और आफ्टर Ujjain, after capturing Ujjain, he destructed the famous temple, Mahakal's temple, destructed the Mahakal temple and also looted the property of Mahakal temple. So during that time he also attacked the Nagada. So what is the Nagada? The Nagada is the capital of the Mewar, the Rajputana kingdom, okay. But he was not successful in that campaign because the Chalukya ruler, Chalukya ruler of Gujarat helped the king of Mewar, and for these reasons he did not win that battle, okay. And after that he take a revenge, okay, he wanted to, he also expedition, he lead an expedition against the Chalukya Gujarat, but he not successful. So after that, in between the 1233 to 1234, one of the seller of the घोड़ी, तो मैंने पहले ही बताया था घोड़ी का, लेकिन कोई भी बात बताती हूँ, मोहम्मद घोरी जो थे ना, इनका भी मोहम्मद घोरी जो थे इनके कोई संतान नहीं थी, ठीक है, मोहम्मद घोरी थे, इनके कोई संतान नहीं थी। तो इन्होंने अपने जितने भी दास थे उनको ही अपना वारिस या उत्तराधिकारी माना था, ठीक है। तो ऐसी तरह घोरी का बहुत सारे स्लेब थे, तो उसमें एक बहुत ही और एक स्लेब था, देखिए उसका नाम क्या है, मालिक नासिरुद्दीन तायसी। क्या नाम है उसका, मालिक नासिरुद्दीन तायसी। उसने कहा अटैक किया और अटैक्ट ऑन द कालिंजर, और इल्तुतमिश ने उसके संग ज्यादा उलझा नहीं, उस इल्तुतमिश ने उसको थोड़ा सा इक्ता दे दिया दिल्ली सल्तनत से और मामला वहीं पर सेटल कर लिया। और इसके बाद इल्तुतमिश से जो उसका जो लास्ट एक्सपीडिशन है, ही लेड हिज लास्ट एक्सपीडिशन अगेंस्ट द बमियान इन द 1236, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सपीडिशंस ही हैड डाइड बिकॉज ऑफ द सीवियर स्टमक पेन। तो एक बार हम लोग इसका जो सिवरल जो इसका जो कैंपेन है इसको फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो 1225 को उसने फर्स्ट स्टार्ट किया था अपना कैंपेन अगेंस्ट द ईस्ट। उसमें से 1226 टू 1227 को उसने बंगाल गवर्नर व बंगाल सुल्तान आइवाज खान, जिसने टाइटल क्या लिया था गियासुद्दीन, उसके खिलाफ अपने बेटे नासिरुद्दीन को भेजा था, ठीक है। और बिटवीन द 1226 टू 27 उसने बंगाल और बिहार को लेके आया था, लेकिन बंगाल का कुछ ही पार्ट आया था और बंगाल का पूरा पार्ट जो है दिल्ली सल्तनत के अंदर में आया था बिटवीन द 1230 टू 31। और बिटवीन द 1200
16, after the 1226, he again lead a campaign or lead an expedition against the Ranthambore and easily captured it. And between the 1226 to the 1232, Iltutmish had established the authority over the Zalor, Manda, Boyana, Gwalior, and after capturing, after Gwalior, he captured Ujjain and looted and destructed the famous Mahakal chapter, and he also attacked on Nagada. Okay, he attacked on Nagada. What is the Nagada? Where the Nagada located is? So Nagada is the capital of the Mewar Rajput kingdoms, but he did not. Become successful. Why he not successful? Because the Chalukya king of Gujarat helped the Mewar king. Okay, but he also lead a expedition against the Chalukya of Gujarat, but he was not very successful in that expedition. Okay. Oh, after that, the one of the slave of Muhammad Gur, named the Malik Nasiruddin Taisi, attacked on the Kalinjit, but Iltutmish had given him some ikta and settled the matter. And Iltutmish led his last expeditions in Bamiyan against the Bamiyan, but during that expeditions, he died. He had died due to the severe stomach pain. सो इल्तुतमिश के बाद उसके जितने भी इल्तुतमिश nominated his daughter as next Sultan of Delhi. Why he nominated his daughter, not his sons? Because उसको लगता था क्या जे उसके जो बेटे हैं ना, उसके जो बेटे हैं वो लायक नहीं है, तो उसने अपने बेटी को क्या किया था, नॉमिनेटेड किया था. तो राजा उसके जो सक्सेसर्स है उनके बारे में पढ़ने से पहले हम इल्तुतमिश को पढ़ेंगे एज अ एडमिनिस्ट्रेटर. सो इल्तुतमिश ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्मेशन किया था. ठीक है, तो ये इल्तुतमिश ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन किया था, वो हम लोग अब पढ़ेंगे. तो he was the first Muslim ruler of the India who determined the importance of the Doab area. Okay, he was the first Muslim ruler. So what is the meaning of the Doab? At first you should understand the meaning of Doab. So Do means the two and Ab means the river. So Ab is a Punjabi language term. So Doab matlab the area between the two rivers. Okay, so which these two rivers are the here Ganga and Yamuna. So the place between the Ganga Yamuna very much fertile, and this area is the known as the Doab. So इल्तुतमिश से सबसे पहले समझाता है जी दोआब जो है ये बहुत ही फर्टाइल एरिया है, ये यहाँ जो उपज है ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ जो खेती बाड़ी है ये बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से मुझे एक बहुत अच्छा जो रेवेन्यू मिल सकता है. तो इसने बहुत अच्छी तरह से दोआब में अपना शासन को क्या किया था, बहुत अच्छी तरह से कंसोलिडेट किया था, और दोआब जैसे अच्छे से इसको शासन किया जाए तो इसलिए इसने क्या किया था, ही डिवाइडेड द होल एरिया इनटू सेवरल इक्तस में इसने पूरे एरिया को बंटवा दिया. ठीक है, बंटवा दिया, पूरे एरिया को इसने बांट दिया छोटे छोटे इक्ता में. और ये सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेशन में ही नहीं था, ये जो इल्तुतमिश था इसने अपना एक अलग ही ये जो मुद्रा व्यवस्था इसने चालू किया था. ठीक है, कौन सा व्यवस्था चालू किया, मुद्रा व्यवस्था, दैट इज द नॉन एज द कॉइन सिस्टम्स. ओके, और ये जो कॉइन्स थे ना प्योर अरेबियन स्टाइल के कॉइन थे. तो ही हैड इंट्रोड्यूस टू टाइप ऑफ कॉइन. तो फर्स्ट इज वन द जितल इज मेड ऑफ कॉपर एंड द next one is a tanka is made of silver. So what is the weight of tanka? The weight of the tanka is 176 kg. Note down this one, there is a weight of the tanka. The weight of the tanka is the 176 grain. And he also inscribed the name of Khalifa on the coins, and for that reason the local people Delhi began to respect him as a sultan. Okay, because he also received a mansur or a letter of recognitions from the Khalifa, and this is the make him easy to this is the easy for now. For that reason the Iltutmish now recognized as a sultan, and every people of the Delhi began respect him.
So he not only inscribed the name of Khalifa on his coin, but he also inscribed the name of city where the coin had minted. तो coin जो शहर में minted होता था वो शहर का नाम भी उसने लिखना स्टार्ट किया. उसके बाद देखिए now he divided his whole empire into the small parts. These parts is known as the iktas. So what is the meaning of ikta? The assignment of land in lieu of salary. Okay, every iktas had to maintain the law and orders and also collect the revenue. Okay, maintain the law order and collecting revenue. After deducting his own salary and expenses, they had to send the surplus to the central government. So this system is known as the ikta. So basically the term ikta means the assignment of land in lieu of salary, and every iktadar had to maintain the laws and orders and collect the revenue, and after deducting their own salary and expenses, they send the rest of amount to the central government. And the iktas are not permanent post. The posts are the transferable post. Okay, they are ट्रांसफरेबल. क्यों ट्रांसफरेबल होता है? अगर एक इक्तादार बहुत दिन तक एक ही जगह का इक्ता को संभालता है ना, तो उसमें करप्शन होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है. तो इसलिए क्या करते थे, इक्तादार्स को थोड़ी दिन बाद अलग अलग जगह में पोस्टिंग कर देते थे. और ये तो गया जैसे शासन व्यवस्था में उसने बहुत सारे सुधार करे, मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया, एक जो नया सिस्टम है टर्म है इक्तादार्स का, इक्ता सिस्टम को उसने इंट्रोड्यूस किया. बस वो जो जस्टिस है, जो जस्टिस सिस्टम है, उसको भी उसने बहुत अच्छे तरीके से संगठित किया था. ठीक है, जो विचार व्यवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आइन जो विचार व्यवस्था है उसको भी उसने बहुत अच्छे तरह से संभाला. देखिए इन द फील्ड ऑफ जस्टिस उसने क्या किया था. देखो उसने उसके जो जस्टिस जो उसका जो जस्टिस सिस्टम था, जुडिशियरी सिस्टम था, उसका जो जुडिशियरी सिस्टम था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था. कौन सा सिस्टम? जुडिशियरी सिस्टम. और उसके जुडिशियरी सिस्टम के बारे में देखिए इब्न बतूता ने क्या कहा है. इब्न बतूता राइट्स अबाउट इट, 2 lions of the marble were built in front of the palace of Sultan and bells were hung in their नेक्स्ट. दैट मीन्स 2 लायन मार्बल के लायन थे जो सुल्तान के पैलेस के इन फ्रंट में बैठाया गया था, और उनके जो गले में थे बेल बांधे हुए थे. क्यों बेल्स बांधे हुए थे? अगर किसी को कोई भी ऑपरेस्ड पर्सन आके रिंग को अगर बेल को अगर रिंग करता है तो उसको जस्टिस मिल सकता है डायरेक्ट सुल्तान से. तो जब वो बेल रंग करेगा तो उसको अंदर ले जाया जाएगा सुल्तान के पास. तो सुल्तान उसका जितना भी प्रॉब्लम है उसको सुन के फिर उसको राय देंगे. तो ये कोटेशन बहुत एग्जाम में आता है. जो इब्न बतूता राय these lions for which Delhi sultans. The 2 lions of marble were built in front of the palace of Sultan and bells were hung in their नेक्स्ट. तो ये इल्तुतमिश के लिए है. और सिर्फ ये नहीं, सिर्फ अपने पैलेस के आसपास ही नहीं, जैसे देश के हर एक जगह सबको अच्छी तरह से विचार मिल सके और जैसे कोई लांछित नहीं रह जाए, अगर कोई परेशान नहीं रह जाए, इसलिए उसने क्या किया था, देश के हर एक छोटे बड़े शहर में उसने काजी और अमीरीदाद को नियुक्त किया था. ठीक है, अमीरीदाद को अपॉइंटेड किया था, जैसे देश के हर एक जगह में हर नागरिक को विचार मिल सके. ठीक है, हर किसी को जैसे एवरीबॉडी कुड गेट जस्टिस. फॉर दिस रीजन ही अपॉइंटेड द काजी एंड अमीरीदाद इन द बिग टाउन्स ऑफ हिज किंगडम. नॉट ओनली दैट, उसने एक ग्रुप भी फॉर्म किया था. सो उसने जब देखा था ना जे दिल्ली में किसी की भी सल्तनत किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वहाँ के जो उलेमा है, जो इस्लामिक स्कॉलर है और जो मिलिट्री जनरल्स है उनके सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगी. अगर ये उलेमा जो इस्लामिक स्कॉलर है, उलेमा और ये मिलिट्री जनरल्स अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कभी भी उसका साम्राज्य टूट के बिखर सकता है. इसलिए उसने क्या किया, बहुत ही चालाकी से जो इस्लामिक स्कॉलर थे, दिस नोन एज द उलेमा, ठीक है,
उनको लिया और कुछ मिलिट्री जनरल्स को लिया, लेके एक ग्रुप को उसने फॉर्म किया। ये इनका सपोर्ट इसको चाहिए था अपने साम्राज्य को ठीक से चलाने के लिए, और इसके वजह से इसने कुछ उलेमा और कुछ तुर्क्स मिलिट्री जनरल्स को लिया, लेके एक ग्रुप बनाया, एंड दिस ग्रुप इज नोन एज तारकानी चहलगानी और तारकानी चहलगानी, और popularly known as the Chalisha Dal. Okay, and these 40 members not only played an important role in the politics, but in future they also acted as a kingmaker, because they make the king, okay, as their choices. After the Iltutmish, the successor of the Iltutmish are not very capable, and now this situation gave them opportunity to make the king according to their wishes. So for that reason, it is said by the historians, this is the 40 members in the future also acted as a kingmakers. So after that we discussing that the Iltutmish is also a very very famous ruler. He was not make the administrative system of the Delhi very good administrative system, but he also make the several architectural buildings in the Delhi. Okay, for this reason he is known as the father of tomb buildings. Okay, so why he called the father of tomb building? Because he constructed the tomb his son. Okay, he constructed the tomb of his son, that is known as the what is the name of his son? That is the Nasiruddin Muhammad. And where he constructed this tomb? He constructed this tomb in the Sultan Gari in Delhi. Okay, for that reason he is known as the father of the tomb building. And he not only his son's tomb, he also built his own tomb in the Delhi, and he also completing the construction of the Qutub Minar, which was started by the Qutubuddin Aibak in the memory of Qutubuddin Bakhtiar Khaki, a Sufi saint. And he had also patronized the great scholar. What is the name of this scholar? That is the Minhajuddin Siraj. And what is the name of the book of Minhajuddin Siraj? That is the Tawaqati Nasiri. Okay, and during his time, many religious people, artists or scholars come to Delhi from the several parts of the Muslim empire. Okay, so they have come to Delhi and permanently lived here because Iltutmish gave them patronized them. Okay, and for that reason Delhi now known as the Baghdad of East, known as Baghdad of the East. And in the some contemporary literature, that this period of the Iltutmish, during the period of the Iltutmish, Delhi is not known as the Delhi. Delhi is the known as the Hazrat-e Delhi. Delhi is known as the Hazrat-e Delhi. So he was known as the tomb of father. So this is a very important question, that the who is Delhi Sultan is known as the father of tomb building, that is the Iltutmish, and whom tomb he constructed first? He constructed his son's tomb, that is the Nasiruddin Muhammad, and he also constructed his own tomb in Delhi. He also completing the construction of the construction of the Qutub Minar, and also had patronized the great scholar Minhajuddin Siraj. And during that time, the several scholars from the Arabian country or from the other Muslim countries came to India. Okay, they were the scholars, religion peoples, and for that reason Delhi known as the Baghdad East. And during that time, in the many contemporary literatures mention the Delhi as the Hazrat-e Delhi. Okay, and lastly, as we can state that the Iltutmish gave a stronghold to his newly established empire, and several historians gave their views about several views about the Iltutmish. So one of them is the H.B.M. Habibullah, one of the very prominent historians who make the quote for the Aibak
make the quote for the Iltutmish that the Aibak only prepared a sketch of Delhi Sultanate. Okay, Aibak only prepared a sketch of Delhi Sultanate, but the Iltutmish was undoubtedly was the first ruler who gave a strong base to his empire. मतलब इसका कहना का मतलब ये है हबीबुल्लाह सर का, जे आइबक ने बस दिल्ली सल्तनत का एक स्केच बनाया था, उसको एक साम्राज्य की तहत से उसने सिर्फ साम्राज्य का एक स्केच बनाया था, किस तरह से साम्राज्य बनाना चाहिए उसने नहीं खड़ा किया था। उसने सिर्फ सेवरल जगह जगह तरह तरह के इलाकों को उसने जीता था, जीत के उसने वैसे ही छोड़ के चला गया था। सबको जो कंसोलिडेट करके एक वर्किंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टेब्लिश करना है, ये आइबक कर नहीं पाया था। लेकिन जब इल्तुतमिश के हाथ में दिल्ली का इतना बड़ा साम्राज्य आया, तब उसने पूरे साम्राज्य को एक ही संग रखा और उसमें एक बहुत ही अच्छा एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसने चालू किया, जिससे पूरे दिल्ली साम्राज्य को उसने बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला। उसमें नए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन किए, उसने मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन किया, कॉइन सिस्टम का प्रचलन किया, उसने इक्ता को इंट्रोड्यूस किया, है ना। और इस तरह से उन्हें दिल्ली को एक नया रूप दिया, दिल्ली साम्राज्य को एक नया रूप दिया। और आरपी त्रिपाठी सर ने भी यही कहा है कि इन द बिगिनिंग ऑफ द मुस्लिम रूल इज रियल सेंस इज क्रेडिटेड टू द इल्तुतमिश। मतलब दिल्ली का जो मुस्लिम रूल है, इसका जो अगर हम लोग क्रेडिट देंगे किसी को तो वो इल्तुतमिश को ही देना चाहिए। And we know the name of the Dr. Ishwari Prasad and the Lenpule. Both are the very important historian of medieval Indian history, and they are also defined as the Iltutmish as the real founder of the slave dynasty. So this is a very important questions for your exams, that who describe the Iltutmish as the real founder of the slave dynasty. Then your answer is the Ishwari Prasad on the Lenpule. So who is the real founder? So this is the very important or the very common questions for the exams. And mention the name of the historians who define the Iltutmish as the real founder of slave dynasty. Then your answer is Ishwari Prasad and the Lenpule. And next, since he died, since he did not consider any of his sons worthy of the throne, because his sons are not very capable ruler. Okay, for that reason he declared his daughter Razia as a successor. According to him, his daughter Razia is more capable than his sons, and the nomination of the women इन द प्रीफरेंस टू सन वाज ए नोबल स्टेप। क्योंकि ये जो मध्य भारत था, अभी भी अगर हम लोग शासन कार्य कहीं पर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की तरह अगर लड़की लोग हो, तो जैसे अभी भी ऐसा बोला आता है जब लड़की लोग एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से संभाल नहीं पाती है, तो उस टाइम पे जो एक मध्यकालीन भारत था, उस टाइम पे इतने रूढ़िवादी सोच थी, तभी भी उन्होंने अपनी बेटी को आगे लाया और लाके बोला नहीं मेरे बेटे लोग कैपेबल नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को अपने सक्सेसर और मेरे उत्तराधिकारी हिसाब से मैं नाम चयनित करके जाऊंगा। वह गए थे, जो एक बहुत ही नोबेल स्टेप था और इस स्टेप के लिए बहुत साहस का भी जरूरत था, तो इल्तुतमिश ने वो कर दिखाया। तो देखिए, so after the death of Iltutmish, who ascended to the throne, his eldest son, क्या है उसका एल्डेस्ट सन के नाम? सो एल्डेस्ट सन का नाम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। लेकिन हमने पढ़ा था जे इल्तुतमिश ने तो उसकी बेटी को नॉमिनेट करके गया था, मरने से पहले। किंतु हमने पढ़ा था ना चालीसा दल या ग्रुप ऑफ 40 जो नोबेल्स थे, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इल्तुतमिश के टाइम से ही एडमिनिस्ट्रेशंस को कंट्रोल करना चाहते थे। जब देखे जिस इल्तुतमिश जैसा एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल सुल्तान जब मर गया, तब
उन्होंने रजिया को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो भी रूढ़िवादी सोच के ही थे। तो उन्होंने इल्तुतमिश के जो लास्ट जो उनकी इच्छा थी उसको पूरा नहीं किया, और उसके जो सबसे बड़ा बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह को उन्होंने उसको सिंहासन में बैठालवा दिया। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह बहुत ही इन कैपेबल रूलर था, उसका एक ही काम था। क्या काम था देखिए, शिप हॉर्स एलिफेंट में घूमना दिल्ली में और डिस्ट्रीब्यूटिंग करना। क्या डिस्ट्रीब्यूटिंग करना? गोल्ड। वो हाथी पे बैठ के घूमता था और गोल्ड को डिस्ट्रीब्यूटिंग करता था, जिससे वो दिल्ली के जो लोग है, दिल्ली के लोग के जो उसको जैसे हमेशा फेवर करता रहे, ठीक है। दिल्ली के लोगों को सहयोगिता पाने के लिए, उनके अपने तरफ खींचने के लिए वो उनमें हमेशा गोल्ड डिस्ट्रीब्यूट करते रहता था। और उसके जगह पे उसको सामने रखे गवर्नमेंट कौन चलाता था? देखो, शाह तुर्कान। तो कौन है ये शाह तुर्कान? ये शाह तुर्कान है, ये शाह तुर्कान है, इसकी मदर है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मदर है। और शाह तुर्कान एक तर्किश फीमेल स्लेव है। हाँ, टर्किश फीमेल स्लेव, टर्किश फीमेल स्लेव है। और ये कहा जाता है जे इन द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री ये फर्स्ट मुस्लिम वुमेन थी जिसने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की कोशिश करी, ठीक है। शाह तुर्कान, वेरी फेमस कैरेक्टर ऑफ द medieval Indian history, recognized as the first woman who wanted to directly or indirectly control the administrations of the Delhi Sultanate. And the next one is the during the period of the Rukunuddin Firoz Shah, several governors of the Iltutmish are started revolting. Okay, start revolting. So who are they? The first are the governors of Lahore. What is the name of the governor of Lahore? That is the Malik Alauddin Zani, and another governor from the Multan. And what is his name? The Malik Saifuddin Kuchi. Both are revolted against the Rukunuddin Firoz Shah, and Rukunuddin Firoz Shah marched against them. Okay, using this opportunity, what did Rajia do? So using this opportunity, Rajia, with the support of Amirs of Delhi, so these Amirs are the not from the group not are the from the group of 40, they are the Hindu Muslims. Okay, Hindu Muslims are the Muslims, Indian Muslims, and they are the Amir of Delhi. They supported the Razia, and when the Rukunuddin Firoz Shah marched to the Multan or the Lahore, Razia with the support of Amirs seized the throne of Delhi Sultanate. Okay, and after that the Firoz Shah and the Shah Turkan were put to death. And by this way the Sultana Razia come to the power. So what is the time period of the Sultana Razia? That is the 1236 to 1240 AD. So when he so what is his date of birth? So date of birth is the 1205 AD and birthplace is the Badayu. Okay, so what is the date of birth? Date of birth is 1205 and डेट प्लेस क्या, सॉरी बर्थ प्लेस क्या है? बदायूं। और उसका टाइटल क्या है? उम्माद से ये होगा उम्माद उल निस्बा। देखिए उम्माद उल निस्बा, उम्माद उल निस्ला उसका टाइटल है। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1205 AD। बर्थ प्लेस क्या है? सो डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1205 AD। बर्थ प्लेस क्या है? बदायूं। टाइटल क्या है? उम्माद उल निस्बा। एंड ही रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ medieval India. And what is the full name of Razia? That is the Jalalat Uddin Razia, and in some Sanskrit inscription she is also known as the Jalaluddin. So ऐसा क्वेश्चन भी आता है, mention the name of the Sultan who is known as the Jalaluddin in contemporary Sanskrit inscriptions. Then your answer is the Sultana Razia. He is known as the Jalaluddin in some Sanskrit inscription. And he discarded the female apparel and the parda. He held court with her face unveiled and she began adorn himself in a male attire. तो वो लड़का लोग की तरह ही जाती थी, लड़का लोग की तरह कपड़ा पहनती थी, उनकी तरह बिहेव करती थी, पर्दा नहीं करती थी, अपने फेस को अनवेल्ड ही रखती थी। और उसी तरीके से वो जाती थी, दरबार में जाती थी, और जैसे लड़के सुल्तान लोग जैसे करते हैं, है ना, जैसे घोड़ा चलाते हैं, हाथी के पीठ में बैठकर नगर की शहर करते हैं, वैसे ही उसने भी
किया, ठीक है। और सुतल लोग की तरह उसने अपने आर्मी को खुद ही मेंटेन किया और हंटिंग में भी वो जाती थी, शिकार के लिए भी जाती थी। लेकिन ये सब जो बात है ना, ये सब जो बात है ये, लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ 40 थे और जो टर्किश नोबेल थे, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि एक लड़की का इस तरह से बिहेवियर करना उनको अच्छा नहीं लगा। सो राजिया को भी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था जी, ये जो टर्किश नोबेल है और ये ग्रुप ऑफ 40 है, ये बहुत पावरफुल है और ये ज़्यादा दिन तक मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे और इनके सपोर्ट के बिना मैं ज़्यादा दिन तक अपना साम्राज्य भी चला नहीं पाऊंगी। तो इसने क्या किया, इनके अगेंस्ट में, इनके काउंटर में इसने एक नोबिल, नॉन तुर्क्स जो थे उन नोबिलिटी के एक ग्रुप बनाया उसने। देखिए इधर मैंने लिख दिया है, creates a counter nobility of Turks invited the worth of Turkish armies। और यही बात लेकिन टर्किश आर्मीज को बहुत ही गुस्सा दिलाने का काम उसने किया। और उसने क्या किया, इस डिसीजन को उसने अप्लाई भी किया और अप्लाई करते हुए उसने एक एब्बासियन स्लेव, जो तुर्क नहीं था, एक एब्बासियन स्लेव था जिसका नाम था क्या, मालिक जमाल उद्दीन याकूत, उसको एक इंपॉर्टेंट पोस्ट दिया। कौन सा पोस्ट दिया, आमिरी आखुर का पोस्ट दिया। जो आमिरी आखुर कौन सा पोस्ट था, सुपरिंटेंडेंट ऑफ रॉयल हॉर्स का दिया, ठीक है। इससे वास्ते तो नोबिलिटी की इस बात से बहुत गुस्सा आया और इसी टाइम से उन्होंने राजिया के खिलाफ क्या करना स्टार्ट किया। पहले से ही वो राजिया को पसंद नहीं करते थे और जब देखा राजिया उनकी बात नहीं मान रही है और उनके खिलाफ एक ग्रुप बना रही है और एक नॉन तुर्क स्लेव को उसने इतना एक इम्पोर्टेंट पद दे दिया, तब से नोबिलिटी ने एकदम डायरेक्टली उसके खिलाफ षड्यंत्र करना चालू कर दिया। और उनको पता लग गया कि राजिया लड़की होने से भी और वुमेन रूलर होने से भी उनकी बात नहीं मानेगी, उनकी हाथ की पुतली और पुतला नहीं बनेगी, वो अपने हिसाब से ही अपना शासन कार्य चलाएगी। तो इसके बाद से क्या हुआ, नोबेल लोग ने क्या किया, तरह बहुत सी जगह के गवर्नर को इन्फ्लुएंस किया राजिया के अगेंस्ट। तो इसके तहत क्या हुआ था, जगह जगह के लाहौर गवर्नर, जैसे लाहौर के भतिंदा के लाहौर गवर्नर ने राजिया के खिलाफ क्या किया, रिवॉल्ट कर दिया, जिसमें जो गवर्नर थे लाहौर के, उनका नाम क्या था, कबीर खां। उन्होंने सबसे पहले उसके अगेंस्ट पे क्या किया था, विद्रोह किया था। उसके बाद आप लोग आइए देखिए, उसके बाद तो इसको तो राजिया ने इजीली हैंडल कर लिया था। कबीर खां का जो रेबल था, राजिया ने उसको अपने सेना दल लेके जाके, अपने आर्मी मिलिट्री लेके जाके इजीली हैंडल कर लिया था। लेकिन 1240 या 1240 को एक सीरियस रिविलियन हुआ था, ब्रोकआउट हुआ। कहाँ ब्रोकआउट हुआ, सिरहिंद। आप लोग को पहले ही पता है सिरहिंद कौन सा एरिया है, भटिंडा का। किसके अंडर में हुआ था ये रिविलियन, इसके अंडर में हुआ था। किसके अंडर में हुआ था, अल्तुनिया के अंदर में हुआ था। तो रजिया ने सोचा था अल्तुनिया को भी वो इजी वे में हरा देगी, तो उसने याकूत को लिया अपने संग लेके, उसने अल्तुनिया के अगेंस्ट हुआ वतिंदा गई। लेकिन वहां पर जो टर्किश फॉलोअर्स थे अल्तुनिया के कुछ टर्किश फॉलोअर्स थे जो अनुचर बोलते हैं, उन्होंने क्या किया, याकूत को मार डाला और राजिया को बंदी बना लिया। और राजिया बतिंदा में बहुत दिन तक बंदी बनकर रही। और उसी टाइम पे दिल्ली में जो ग्रुप ऑफ 40 थे और टर्किश नोबेल थे, और एक पुत्र जो थे इसके नासिरुद्दीन शाह, सॉरी इल्तुतमिश के, बहरम शाह को क्या किया, दूसरा सुल्तान घोषित कर डाला, ठीक है, घोषित कर डाला। और धीरे धीरे क्या हुआ, राजीवा जेल में रहते हुए ही उसने अल्तुनिया के संग अपने रिश्ते अच्छे करे और उसके संग उसने शादी कर लिया और वो फिर से दिल्ली आने लगी, दिल्ली को अपने अंडर में लेने के लिए। लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था, वो हार गई थी, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जो दिल्ली की जो सेना है, सेना ने याकूत और रजिया को दोनों को हरा दिया था, ठीक है। दोनों को हरा दिया था और हराने के बाद उसने क्या किया,
उन लोग ने क्या किया, उन लोग ने कैथल की तरफ बढ़ने लगे वो लोग, ठीक है, वो लोग कैथल की तरफ बढ़ने लगे, जहां पर राजिया और अल्तुनिया का क्या हुआ था, दोनों को डकैत लोग ने मार डाला था। बोथ आर दे assassinated बाय द डकैट्स। ओके, नेक्स्ट वन, उसके बाद लेकिन बहरम शाह सुल्तान बना, और बहरम शाह के बाद कौन बना, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो बहरम शाह भी पपेट रूलर था, ठीक है, और इसने नायबे मामलिकात बोल के एक नया पोस्ट चालू किया था, ठीक है। और अलाउद्दीन मासूद खान ने पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसने लास्ट जो खलीफा था, क्या नाम था, अल मुस्तसिम, अल मुस्तसिम के नाम को अपने कॉइन में इंस्क्राइब किया था। और अल मुस्तसिम कौन था, लास्ट खलीफा था, लास्ट खलीफा ऑफ अब्बासिद। और ये जो अल्तसिम है, अल्तसिम को किसने मर्डर किया था, अल्तसिम का, जिसका हलाकू। एंड हु इज द हलाकू, हलाकू इज द मंगोल लीडर, मंगोल लीडर। तो ये दोनों जो है, दोनों ही लेकिन पपेट रूलर थे, और इनके टाइम में ये नाम के सुल्तान थे। इनके टाइम पे पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था किसके हाथ पे था, टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो सुल्तान थे, सुल्तान के जो ग्रुप ऑफ 40 थे उनके मेंबर के पास था। और ये जो अलाउद्दीन मसूद शाह है ना, ये अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम से लेकिन बलबन धीरे धीरे सामने आने लगा और पावर को एक्यूर करते गया, और मालिक से धीरे धीरे वो गवर्नर, गवर्नर से धीरे धीरे पहले मालिक बना, फिर खान बना, खान से वो गवर्नर बना, और धीरे धीरे उसने सुल्तान बना। तो इसी के टाइम से उसने पावर उसको मिलना स्टार्ट हुआ। तो इनके बाद जो अलाउद्दीन मासूद शाह के बाद जो बैठा था वो था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, दैट इज द बिटवीन द 1246 to the 1265, and he was the grandson of the Iltutmish, but according to the Minhajuddin Siddhas, he is not a grandson but he is a son of the Iltutmish. But most of the historian say that he is not a grandson, he is the grandson of the Iltutmish, and he ascended the throne with the aid of Ulugh Khan and or the Balban. So another name of the Balban is the Ulugh Khan. She is popularly known as the Ulugh Khan, and he is a member of the group of Chahelgani or the 40. Okay, and he also married his daughter to the नसीरुद्दीन, क्योंकि उसने नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह को एज ए रूलर सामने रखा था, किंतु पीछे से नसीरुद्दीन के नाम पे वही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था, और वो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह को जैसे इजीली चला सके इसलिए उसने अपने बेटी की शादी नसीरुद्दीन से करवा दिया। नेक्स्ट, the real power during the Muhammad reign lay in the hand of Balban. Next, the growing authority of Balban alienated many of the Turkish chiefs, and with the conspiracy in the 1250, she ousted the Balban from his position. लेकिन अब क्या हुआ, बलबन धीरे धीरे पावरफुल होता रहा, जो उनके ही ग्रुप के जो और जो चीफ तर्किश चीफ थे उनको पसंद नहीं आया, ठीक है, उनको पसंद नहीं आया, और उन्होंने क्या किया, बलबन को उसके पोस्ट से हटाने के लिए षड्यंत्र किया, और उसको हटा के किसको रखा, विद द इमाउद्दीन रेहान। इमाउद्दीन क्या, रेहान कौन थे, ये लेकिन तुर्क नहीं थे, ये एक नॉन तुर्क थे, और ये एक इंडियन मुस्लिम थे, ठीक है, एंड हु वाज एन इंडियन मुस्लिम्स। एंड आफ्टर दैट बलबन टुक द, और इसके बाद बलबन को कहाँ का शासनभार संभालने के लिए दिया गया, हांसी और नागौर। एज बाबर इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन एंड वेरी पावरफुल पर्सन, ही यूनाइटेड द लोकल सपोर्टर्स, ओके, एंड मार्च टू दिल्ली, बट मार्च किया दिल्ली की तरफ, दिल्ली को जीतने के लिए। बट नसीरुद्दीन क्या किया, इस टाइम पे नसीरुद्दीन थोड़ा सा बुद्धिमानी का काम किया, उसने रेहान से उसका बलबन का जो पोजीशन है उसको स्नैच किया और बलबन को रीपोजिशन किया, ठीक है।
एंड ड्यू ऑफ द कोर्स बलबन बिकम वेरी पावरफुल, धीरे धीरे बलबन लेकिन बहुत ही पावरफुल बनते गया. And in the year of the 1265 the Muhammad Nasruddin Mohammed became diet. उसका मृत्यु हुआ 1265 को, 1265 को उसकी मृत्यु हुई. और लेकिन इसकी मृत्यु नेचुरल थी ना अननेचुरल थी, क्या एक्सीडेंटल थी, इसके लिए लेकिन हिस्टोरियंस में मतभेद है. अकॉर्डिंग टू द सम हिस्टोरियंस सच एज इब्न बतूता. सो व्हाट इज द व्हेन डिड इब्न बतूता कम टू इंडिया? इब्न बतूता कम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. और ईसा में किसका कंटेम्प्रेरी था? ईसा में कंटेम्प्रेरी था फिरोज शाह तुगलक. इब्न बतूता का बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था किताब उल रहला. और ईसा में का क्या नाम था? फुतवा ई सलातीन. ठीक है, तो ये बुक के नाम भी पढ़ लेना. सो इब्न बतूता इज कम फ्रॉम द मोरक्को. कहाँ से आया था वो? मोरक्को. ड्यूरिंग होम पीरियड? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक ऑफ what is the name of book of Ibn Battuta? That is the Kitabul Rahla. And Isami is the contemporary of the Firoz Shah Tughlaq, and his name of his book is the Futwa-i Salatani. Both are mentioned, or both are give their opinion that the Balban poisoned his master Nasruddin. His master come son-in-law Nasruddin and ascend the throne. एंड नसरुद्दीन एक पपेट रूलर था जरूर, लेकिन वो दिल्ली सल्तनत का लेकिन एक बहुत ही चर्चित सुल्तान भी था. उसके इतने सारे गुण थे जिसकी वजह से लेकिन उसको हम अभी पढ़ रहे हैं. उसके अंदर कुछ ऐसे कुछ विशेषताएं थी जिन्होंने उसको बिल्कुल ही बाकी सुल्तानों से अलग बनाया. ठीक है, क्या था उनके गुणों? देखो, वो दिल्ली सल्तनत पीरियड का सबसे रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट रिलीजियस सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत का सबसे धर्मीय और रिलीजियस सुल्तान वही था. लेकिन ठीक है, वो लेकिन कैसा था? वो कभी भी रॉयल ट्रेजरी को अपने पर्सनल लाइफ के लिए यूज नहीं करता था, अपने डेली नीड्स के लिए नहीं यूज करता था. वो कहता था ये जो रॉयल ट्रेजरी ये मेरे प्रजा के लिए है. ठीक है, प्रजा के लिए है, ये मेरे सब्जेक्ट्स के लिए है, इसको मैं अपने सब्जेक्ट्स के लिए यूज करूंगा, उनके डेवलपमेंट्स के लिए यूज करूंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन के लिए यूज करूंगा, लेकिन मैं अपने पर्सनल काम में नहीं यूज करूंगा. तो उसने कैसे अपने डेली नीड्स को फुलफिल करता था? टू बाय सेलिंग द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ कुरान. वो डुप्लीकेट कॉपी बनाता था कुरान का, फिर उसको सेल करता था. इस तरह से ही अर्न फॉर हिज फैमिली एंड ही लीड हिज फैमिली लीड अ सिंपल लाइफ. हिज फैमिली नेवर लीड अ royal life, okay, or not have a very prosperous lives. They have lead a very simple life like a common people, okay. And the Minajuddin Siraj described the Nasruddin Muhammad as a great person. And what is the name of the book of Minajuddin Siraj? That is the Tawaqat-i-Nasiri, ओके, तवाकती नासिरी. और ये जो तवाकती नासिरी है, मिनाजुद्दीन सिराज ने नासिरुद्दीन को ग्रेट पर्सन बोला है और दिल्ली का आदर्श सुल्तान बोला है. क्या बोला है? आदर्श सुल्तान. दिल्ली का आदर्श सुल्तान बोल के उसने डिस्क्राइब किया है नासिरुद्दीन को. ठीक है, एंड ही आल्सो डेडिकेटेड हिज बुक टू द नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, क्योंकि नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह ने ही मिनाजुद्दीन को लास्ट तक पैट्रोनाइज किया था. और मिनाजुद्दीन सिराज नासिरुद्दीन शाह को, नासिरुद्दीन मोहम्मद को अपना प्रभु या मास्टर समझता था. ठीक है, तो आज का क्लास यह तक ही है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बलबन का जो रेन है उसकी अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे और उसके लाइफ में उसके जो रिफॉर्मेशन है, उसके अचीवमेंट्स है, उसकी डिफीट्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे. और कैसे स्लेव डायनेस्टी डिक्लाइन हुआ और कैसे खलजी रिवोल्यूशन हुआ, ये भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.